class. As you know, we are doing chapter number 2 of class 8, linear equation in one variable. We had done till exercise 2.1 and word problems of 2.2 exercise. Now today we will do exercise 2.3 and 2.5 exercise. Just because of they are only direct questions, equation questions of in this chapter. The word problem exercise we will do it last of this chapter. Okay. The first question of 2.3. First we will do 2.3. The first question is very easy. We had done this question already in 2.1. It is just a revision for you. Okay. 3x equal to 2x plus 18. It means वेरिएबल को एक साइड रखना है एंड जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड रखना है. ये वेरिएबल टर्म है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे. इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस एंड प्लस 18 इज सेम. 3x minus 2x equal to x equal to 18. It means x की वैल्यू क्या बनेगी 18. And in question number 3, 5x plus 9 equal to 5 plus 3x. Same process. We have to सेम साइड ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल्स को एक ही साइड लेके आना है और कांस्टेंट को एक साइड में. डन. ये वेरिएबल है, इस साइड में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में. इट विल बिकम माइनस 5 माइनस 9 और ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा. 5x माइनस 3x 2x. 5 माइनस 9 इज 4. प्लस माइनस माइनस एंड माइनस का डिजिट बड़ा है इसलिए माइनस का साइन. नाउ 2 is in multiple of x. It will be go in divide of minus 4. Minus 4 upon 2. कट होके 2 आएगा. It means x की वैल्यू क्या बनेगी 2. Okay. Again. Question number 6. 8x plus 4 equal to 3x minus 1 plus 7. Okay. Now 3 is multiplied by both x and 1. 3 multiplied by x 3x. 3 multiplied by minus 1. 3 1s are 3 plus 7. Now 8x plus 4 3x minus plus minus 7 minus 3 4 plus digit is bigger than sign will be plus. Again वेरिएबल को एक साइड, इसको इधर लेके आए minus 3x, इस 4 को उधर ले गए minus 4. 5x equal to 0. x equal to 0 upon 5. 0 divided by any number is always 0. तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा 0. Okay. Now we will do question number 8 and 9. There are total 10 questions in this exercise. I will do 5 questions and remaining 5 questions you have to do a homework notebook. Question number 8 and 9. Yes, question number 8, which is 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. Okay. And 9th question is 2y plus 5 upon 3 26 upon 3 minus y. The question is very easy. The problem is that variable and constant terms are given in fraction. सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्रैक्शन नंबर्स गिवन हैं और कोई भी चेंजेस क्वेश्चन में नहीं है. ओके. सेम वर्क करना है हमें. वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड. इट मींस 2x upon 3. ये वेरिएबल है, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा. इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस. प्लस का था यहाँ आया माइनस का बना. 3 ये वहां गया माइनस. हियर वी हैव टू टेक एलसीएम. 3 एंड 15 का एलसीएम कितना होता है? सिंपल 15. यू कैन ऑल्सो चेक बाय टेकिंग एलसीएम. आप लोग चाहो तो 3 एंड 15 का ऐसे एलसीएम लेके चेक कर सकते हो. नाउ 15 divided by 3. 5 multiplied by 2 10x minus 15 divided by 15 1 multiplied by 7x equal to 2. 10 minus 7 3x upon 15 equal to 2. 3 1s are 3 5s are
x upon 5 equal to 2 and 5 will be go in multiple in right side. ये 2 राइट साइड में, ये x upon 5 लेफ्ट हैंड साइड में. इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है इक्वल में जब भी जाएगा वो मल्टीपल में जाएगा. 2 into 5 x is equal to 10. Okay. And question number 9. 2y माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट किया या ट्रांसफर किया, प्लस का y बना 26/3 माइनस 5/3. 2y प्लस y 3y इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 3 बनेगा और ऊपर दोनों सेम आएंगे. जब भी आप फ्रैक्शन नंबर का या रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एलसीएम अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो वापस एलसीएम भी वही बनेगा. 3y is equal to 21/3. 3 7s are 21. y equal to 7/3. Okay. And if you want to check your answer is right or wrong, simply put this value of y in given question. देखो अब एक चेक भी कर लेते हैं हम यहाँ पे साइड में. Okay. What is the value of y? 7/3. तो क्वेश्चन में लिखो 2 into 7/3 प्लस 5/3 26/3. y की वैल्यू क्या है? 7/3. अब ये बोथ साइड सेम आती है, इट मीन्स अवर आंसर इज राइट, अदरवाइज रॉन्ग. 2 7s are 14/3 प्लस 5/3. यहाँ पे एलसीएम ले लो, सेम आएगा 26 minus 17. यहाँ पर भी एलसीएम सेम आएगा 14 plus 5 and 26 minus 7 19/3. और ये भी तो क्या है 14 plus 5 19/3. It means our answer is right. Okay, there are total 10 question in 2.3 exercise. इसमें क्या है, आपको वैल्यू फाइंड करने के साथ साथ में यू हैव टू चेक योर आंसर इज इट राइट और रॉन्ग. तो चेक आंसर करने के लिए जो भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू आती है, पुट दैट वैल्यू इन गिवन क्वेश्चन. ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 2.5. 2.1, 2.3 and 2.5 are simple exercise in which we have to find value of variable. उस क्वेश्चन में जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा हाई बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, इनको सॉल्व करना है. First question is this and third question is x plus 7 minus 8x/3 equal to 17/6 minus 5/2x. ओके, सिंपल क्वेश्चन है. अगर इस क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ भी नहीं हो, जस्ट लिखा हो सॉल्व दिस, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स. इस क्वेश्चन का एग्जाम में बोर्ड में आने का तरीका क्या हो सकता है? सॉल्व दिस, सिंप्लीफाई दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. ओके, तो वेरिएबल क्या है? एक्स है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगेन सेम रूल, वेरिएबल एक साइड एंड कांस्टेंट टर्म एक साइड. इसको लेफ्ट हैंड साइड में सेंड किया, माइनस का बना, ये उधर गया प्लस का बना. नाउ सिंपली वी हैव टू टेक एलसीएम. 2 and 3 का एलसीएम 6. 6 divided by 2 3. 3 multiplied by x 3x minus 6 divided by 3 2. 2 multiplied by x 2x. 4 and 5 का एलसीएम, बोथ आर को प्राइम नंबर. 5 एक प्राइम नंबर है एंड 4 एक डिविजिबल नंबर है, ये जो कि 2 and 4 से डिविजिबल होता है. इट मीन्स बोथ आर को प्राइम नंबर्स. ओके, तो इन को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उन दोनों का मल्टीपल. देन 4 और 5 का एलसीएम 20. 20 डिवाइडेड बाय 4 5. 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5. 20 डिवाइडेड बाय 5 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4. 3x minus 2x
x upon 6 and 9 upon 20. 6 is in denominator of x, it will be go in multiple of 9 upon 20. तो ये मल्टीपल में जाएगा 9 upon 20 मल्टीप्लाई बाय 6. तो ये न्यूमरेटर के मल्टीपल में जाएगा, डिनोमिनेटर के मल्टीपल में नहीं जाएगा. तो 6 का डिनोमिनेटर क्या कंसीडर कर सकते हैं? 1. अब 2 3 2 10 x वैल्यू इज 27 upon 10. तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 27 upon 10. नाउ सेम वेरिएबल को एक साइड एंड कांस्टेंट टर्म को एक साइड. x माइनस 8 अपॉन 3x, ये माइनस का था तो माइनस का रहेगा, ये माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस 17 अपॉन 6. अब ये प्लस का 7 राइट हैंड साइड में गया, इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस. अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, इसके कुछ नहीं है 1, तो यहाँ एलसीएम लिया तो आएगा 6. 6 डिवाइडेड बाय 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x. 6 डिवाइडेड बाय 3 डिनोमिनेटर से डिवाइड जाता है एलसीएम में, और जो भी आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से. 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16x. 6 डिवाइडेड बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15x. ओके, एलसीएम 6 और यहाँ 17 और ये 42 आएगा जैसे हमने यहाँ पर किया. ओके, नाउ ये प्लस का है, ये प्लस का है. अब देखो ध्यान से, ये प्लस का डिजिट, ये भी प्लस का डिजिट, दोनों का प्लस. 6 प्लस 15 21. 21 माइनस 16 इज 9x अपॉन 6. ओके, 21 माइनस 16 इज 9x. ओके, चेक कर लेते हैं. 6x plus 15 is 21. ओके, 6x plus 15x is 21. 21 minus 16 is 5x. यहाँ पे 5x आएगा अपॉन 6. माइनस 25 अपॉन 6. देखो अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 6 है डिनोमिनेटर, तो ये दोनों कट हो जाएंगे. एंड x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 5. 5 5 जा 25. x इक्वल टू माइनस 5. x की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस 5. ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6. ओके, in 2.5 there are total 10 questions. Okay, we will do now question number 5 and 6. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 5 and 6 का जैसे ही है. तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 5 की करो. क्वेश्चन नंबर 5, 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 4, सॉरी यहाँ 3 है, and minus equal 2 upon 3 minus t. Let me check this question. 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 equal 2 upon 3 minus t. अच्छा, अब इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा वेरिएबल कौन सा किस साइड जाएगा. इट मीन्स सिंपली जो डिनोमिनेटर है उसको रिमूव करने का ट्राई करो कि जो ये डिनोमिनेटर है इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है. उसके लिए आप सिंपली एलसीएम ले लो. अब हम किसी को कहीं नहीं भेजेंगे, कोई भी नंबर ट्रांसफर नहीं होगा, हम सिंपल एलसीएम लेंगे. इस t के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 कंसीडर किया. 4 और 3 का एलसीएम 12 डिवाइडेड बाय 4 3. उस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे बाइनोमियल टर्म से होगा. ये एक बाइनोमियल टर्म है तो आपको इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा. ओके, बाइनोमियल टर्म का जब आप मोनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाइनोमियल टर्म टू मोनोमियल यू हैव टू पुट बाइनोमियल टर्म इन ब्रैकेट. तो जो बाइनोमियल टर्म है इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा आपको. डन.
minus minus 12 divided by 3 is 4। अगेन ये बाइनोमियल टर्म है, डाल दो ब्रैकेट के अंदर 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3t। इसका तो हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, मल्टीप्लाई बाय 2 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय 1 3, मल्टीप्लाई बाय 3t। ओके, 3 3s are 90, 3 2s are 6, 4 2s are 80, 4 3s are 12, minus plus minus upon 12, 2 minus 3t upon 3, 9t minus 8t is equal to 1t, minus minus plus which is minus 18 upon 12 equal to 2 minus 3t upon 3. Now this part of question is become question number 4. Question number 4 जो है आपका इसी टर्म में only numbers are changed, numbers और वेरिएबल जो है वो चेंज हो गए हैं, बट फॉर्मेट यही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से कैसे करोगे? बाय डूइंग सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा t माइनस 18 से, विच इज इक्वल टू 12 2 माइनस 3t, 3t 18 is 54 24 36। ओके, नाउ अच्छा इसके साथ t है तो t लगाओ, अगेन वेरिएबल को एक साइड 36 t 24 प्लस 54 39 t इक्वल टू 78, t is equal to 78 upon 13। Now table of 13, 13 3s are 39, 13 6s are 78, 3 1s are 3 2s are, t is equal to 2। okay, for today this is enough। आज के लिए हम इतने क्वेश्चंस करेंगे। if you have any problem in this exercise or question you can simply ask in our comment section box। okay, good day।